द मोस्ट वल्नरेबल, जिसपे द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 99 में पार्लियामेंट ने पास किया था। और जब 99 में ये एक्ट पास हुआ, उसके पीछे द ऑब्जेक्टिव वाज द सेम कि देयर वर 4 disabilities, namely autism, cerebral palsy, intellectual disability and multiple disability। ये 4 disabilities में एक पेरेंट की वरी होती है, व्हाट विल हैपन टू माय चाइल्ड आफ्टर मी, बिकॉज ये मोस्ट वल्नरेबल है। द चाइल्ड कैन नॉट डू द सेल्फ एडवोकेसी, ही डजंट अंडरस्टैंड हिज ओन राइट्स। Everyone, I'm Jitendra Singh, banker turned entrepreneur and author of the book Pepak Mastering the Art of Selling. I welcome you to read my story where I interview authors, speakers, coaches, celebrities, entrepreneurs and more. Today I have with me Dr. Pankaj Maru. He has done Bachelor's of Engineering, Postgraduate Diploma in Industrial Safety, Masters of Business Administration in Human Resource, Postgraduate Diploma in Community-Based Rehabilitation. He has experience of more than 30 years, worked with various organizations from manager to CEO level, and also been working along with his professional career into a social journey. He has been socially activist for various number of years and worked with many wonderful organizations in this regards. So he is also the founder of ISNE Nagda, which is a recipient of National Award for Best Organization in the country, providing holistic solution for PWDs. He is also a national president of Parivar, India's largest confederation of parents association of PWIDDS, served on many key positions in various apex policy making bodies of DEPWD, MSJE, Government of India. He is also a recipient of many national and international awards, including the Best Professional Working for the Cause of Disability by the Honorable President of India in 2016, the International Excellence Award in 2017, Lawrence International Presidential Medal in 2018, National Vasisht Seva Samman in 2018, and many more. He is also a world record holder for training the maximum number of parents on PWIDS in a single session. So today he will be discussing with us about his life journey. So welcome Pankaj sir, the platform is open and now over to you. Thank you very much, Jitendra Singh ji, for giving me this opportunity to share about my journey, share about my vision, and share about the sector. Now, let me tell you about my journey. My birthplace is Nagda, Madhya Pradesh, near Ujjain, which is a very famous Jyotirlinga. And मैं बहुत ही छोटी सी पुअर फैमिली में मेरा जन्म हुआ. And right from the schooling, being a very brilliant student, I did my 10th and 12th from Birla School, where I topped the 10th and 12th, and then I took my admission in engineering, GSITS Indore, which is one of the best engineering institutes on that time. And I did my engineering from the civil discipline, and I was the university topper in that also. Great. Because my family situation was very, financially was not very good. So I used to teach the students of 9th when I was in 10th. And similarly, till the college time, I used to become the mess secretary so that I can bring the vegetables, and my mess fee was waived. So like that, I started my education part. Then I joined one of the companies in my native place itself, which has been taken over by a multinational company in 1999. That is a French company, Total. And then, my journey of career is like I started as a project engineer to then, because I have the experience of the advanced environmental engineering, so I have been promoted to the GM health safety environment. I did PG diploma in industrial safety also. And like that, in 2007, I left the company and I joined a Dubai-based organization, the 1 Point Group, where I started my journey as a vice president business development. And as far as my family is concerned, my mother, father, my wife, and my 2 daughters. So my younger daughter is diagnosed with ADHD, and when I was in Dubai, it has been told by one of the psychologists where my daughter was going for the education that she has an ADHD, and because she is socially very active, so I should not live in Dubai.
and I should go to my native place so that she can get the social environment. Right. बस वही लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था. I and my wife we discussed and I thought कि ये लाइफ is for something else. ईश्वर ने कुछ और प्लानिंग किया है इस जीवन के लिए. Correct. So I immediately resigned because at that time I have become the chief operating officer of that company. So on 21st of June 2009, I resigned from the company and came back to India. On 10th of July 2009, I founded that my organization SNEH, which is a special need education home. And I started my journey in this sector with 2 rooms, which are the rental rooms. 2 qualified staff, Dr. Naina Christian, who was an occupational therapist and co-founder with me. And we have 8 intellectually challenged kids with us. Okay. So that's how I started my journey in this sector. Till that time, I was not much aware about this sector. But yes, I was very clear in my mission and vision that I have to make my organization world class, different from others. And I want to, because when I came to India, I saw the very difference from the Dubai to India, because the people here are not ready to accept. I am giving you one example. मेरे ही मोहल्ले में मेरे ही आसपास के परिचित लोग मेरी बेटी को, though she was intellectually challenged, but they used to tell her पागल है. Because society is not aware what is the difference between mental illness and mental retardation or intellectual disability. Correct. So ये जर्नी यहीं से शुरू हुई and it was really initially it was very difficult to convince even to the parents to send their wards to our center, क्योंकि पेरेंट्स को लगता था कि ये जो हमारी सोसाइटी में सो कॉल्ड क्वालिफाइड लोग हैं, सो कॉल्ड टॉप मोस्ट पीपल है, वो इन लोगों को एक अलग दृष्टि से देखते हैं कि दे कांट डू एनीथिंग एंड दे आर नॉन प्रोडक्टिव एंड दे नेवर यूज्ड टू पार्ट ऑफ द सोसाइटी. Correct. So this was a very big myth in our society. और वो बड़ा एक प्रॉब्लम था कि कैसे बच्चों को सोसाइटी से हमारे सेंटर तक लेके आए. Being a MBA from HR, I studied the psychology and I understood कि एक पेरेंट हमेशा ये चाहता है कि उसका नाम उसके बच्चे से, और वही मैंने पकड़ा. Then I met with all the media people of my hometown, who most of them are very good friends of mine, because when I was in a multinational company at my own city, I used to do the PR, IR, etc. So I requested them that please you do one thing. Whenever there will be a program in our organization, we will give you a press release. Please give a good coverage along with the name of our students, their parents' name, etc., etc. And यहाँ से एक turning point आया. And that human psychology works. और हमने स्टार्ट किया बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज along with their treatment, चाहे स्पोर्ट्स हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, एंड मीडिया सपोर्टेड अस अ लॉट, a huge coverages in the newspaper. बच्चों का engagement भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ स्टडी पे फोकस करें ना तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते. स्पोर्ट्स आते ही बच्चों को इंटरेस्ट आता है. वेरी ट्रू, करेक्ट. तो वहां से फिर स्टार्ट हुआ और फिर लोगों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया. एंड देन दैट जर्नी, नाउ टुडे we are in our own building, world class building, where we have all the ultra modern facilities along with 39 staff, 159 intellectually challenged kids. So ये सारी चीजें यहाँ तक हम पहुंचे. That's really wonderful, sir. तो जैसे हम जब ग्रो हो रहे होते हैं ना, हमारे मन में हमेशा कुछ थॉट्स होते हैं कि हमें बड़े होके कुछ बनना है. तो ऑन दी सेम नोट, व्हाट वर योर थॉट्स व्हेन यू वर ग्रोइंग एंड व्हाट इज द लाइक करंट पोजीशन ऑफ द सेम? दैट मींस लाइक हाउ डिड योर लाइफ हैज अफेक्टेड व्हाट यू वांटेड टू बी इन योर लाइफ एंड व्हाट यू आर? So जब मैं छोटा था, because I was quite inspired with my mama, who is an engineer. Okay. तो उनको देख के, ऑब्वियसली एक बच्चा जब छोटा होता है तो फैमिली में किसी को देखता है तो वो उसको अपनी इंस्पिरेशन मानता है. और वो बहुत ही मतलब बड़े लेवल पे, एंड ही वाज इन अब्रॉड आल्सो. ही सर्व्ड एज अ चीफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियर ऑफ द पोर्ट ऑफ इन वेस्ट इंडीज, पोर्ट ऑफ स्पेन. देन ही वाज चीफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियर इन मॉरिशस. तो ड्रीम वही था कि मामा जैसा कुछ बनना है. एंड जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो थोड़ा शिफ्ट हुआ, क्योंकि दैट टाइम व्हेन आई वाज 1988 मेरा एडमिशन हुआ GSIGS में. 92 4 इयर्स डिग्री कोर्स किया. तब एक माहौल था इंजीनियरिंग में बच्चों का IAS बनने. तो मुझे लगा कि मुझे भी IAS बनना चाहिए.
बट बिकॉज ऑफ द फैमिली सिचुएशन मुझे लगा कि मुझे 92 में निकलने के बाद तुरंत जॉब की जरूरत है। फॉर एन IAS मुझे 4-5 साल और स्टडी को देना होते हैं बिकॉज इट्स वेरी टफ। तो देन मेरा वो ड्रीम मैंने छोड़ दिया कि ओके लेट्स कंटिन्यू विथ माय कोर कॉम्पिटेंसी। तो IAS बनने का ड्रीम कहीं ना कहीं मन में हमेशा था। बट इन 2009 व्हेन आई केम बैक टू इंडिया फ्रॉम दुबई और इस सेक्टर में गया, तो जितेंद्र जी यकीन मानिए सोचा तो नहीं था कभी, बट धीरे धीरे 2014 में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए एंड उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था अपने मिनिस्टर्स को कि आप अपनी मिनिस्ट्री में कुछ फील्ड के एक्सपर्ट्स को रखिए। एंड उन्होंने एक बात और कही थी कि सारे मिनिस्टर्स के लिए कि उनकी फैमिली के लोगों को उनको क्लोज सर्कल में नहीं रखें, बिकॉज द सोशल जस्टिस मिनिस्टर एट दैट टाइम डॉक्टर थावरचंद गहलोत, वो मेरे ही प्लेस से है, नागदा से। एंड वो जानते थे स्नेह के बारे में, मेरे बारे में, बिकॉज मैं बॉर्न एंड बॉटम नागदा हूँ। देन ही टोल्ड मी टू बिकम हिज एडवाइजर। और बस यहाँ से एक और टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने मुझे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की एपेक्स बॉडी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, ही अपॉइंटेड मी देयर। और उनके साथ मैंने पॉलिसी लेवल पे काम करना शुरू किया। In 2016, we drafted the Rights of Persons with Disability Act, which has been passed by the Parliament. Right. The right-based model as per the intention of the UNCRPD. Then we drafted the Rights of Persons with Disability Rules, which has been passed in 2017. और ये सब चीजें करते करते मुझे कई सारे IAS लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। उन्हें गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स और पॉलिसीज क्या है, हम कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते। आई यूज्ड टू टेक द ट्रेनिंग्स एंड उसमें IAS होते थे, IPS होते थे। एंड कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि मन में एक इच्छा होती है वो ईश्वर कभी पूरी करता है। करेक्ट। तो मुझे लगा कि शायद मैं IAS बनता तो भी ये नहीं करता जो मैं आज कर रहा हूँ। एंड कई जिलों के कलेक्टर्स को, SPs को, even in the northeast also I provided the training about the government programs, policies, schemes, etc. ये सब काम हम लोगों ने किया। तो एंड ऑफ द डे मैं यही कह सकता हूँ कि जो आपके मन में एक ड्रीम होता है, कहीं एक छुपा हुआ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें होती है और आपके इंटेंट अच्छे हो तो ईश्वर उसको साकार जरूर करे। करेक्ट। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं वो फॉलो करने के लिए आपका ड्रीम। सो दैट इज रियली वंडरफुल थिंग। तो इफ आई टॉक अबाउट थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट इन योर लाइफ, तो कौन कौन सी वो चीजें जो आपको मतलब बहुत ज्यादा पैशनेट रखती है? Yeah, see, basically I am a very positive person. Number one, being a person background of MBA HR, I used to motivate the people because what I feel कि जितना भी हमारे अंदर अगर हम नेगेटिविटी आती है तो वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी होती है। Like I'm giving you an example, मैं एक पोर्टल शुरू किया था in 2009 while coming back from Dubai. मीडिया से भी मेरा लिंक रहा है, मैं खुद मेरा एक न्यूज पोर्टल चालू किया था, Let's see the positive news। और हम कहा करते थे कि जब सुबह हम उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी नेगेटिव न्यूज दिखाई जिससे हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। We are not even linked with that, but हम in our brain we create lot of negative thoughts। ओ सोसाइटी में तो ऐसा हो। अभी एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है जो कि लाखों ट्रेनें चल रही है, वन एक्सीडेंट हुआ तो हमें लगता है कि वो अब तो ट्रेन में बैठना ही बेकार, ये क्या हो रहा है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। पॉजिटिविटी ज्यादा है, नेगेटिविटी कम। सो आई ऑलवेज यूज कि यार पब्लिक को जितना पॉजिटिव वे में ला सकते हैं विद द पॉजिटिव थॉट्स। सो वो मेरा एक पैशन होता है ऑलवेज टू मोटिवेट द पीपल। सिमिलरली इन दिस सेक्टर, अगर मैं डिसेबिलिटी सेक्टर की बात करता हूँ, आई यूज्ड टू टेल द पीपल बिकॉज when you want to convince somebody, you have to give the logical things, then only he can convince. Correct. And you, आप आज की जनरेशन को, यूथ को कभी भी आप कहानी किस्सों से कन्विंस नहीं कर सकते। You have to set an example yourself. Then only they will be convinced. Right? Yesterday मैं एग्जाम्पल दूं, कल मैं दिल्ली में I was addressing 500 students of इंदिरा गांधी ओपन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और I was talking to them about the inclusion in the society. And I said कि हम सबका थॉट क्या है कि सुभाष चंद्र बोस तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के मेरे घर में ना हो। राइट। एंड आई टोल्ड देम कि यार आप सब लोग जितने हो, शायद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो जिसका कोई क्लोज फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी से अफेक्टेड ना हो। तो why can't you work with them? And they liked it. I am telling you because I was the first hand having the first parent. When I was telling this, they can understand.
और उन्होंने कमिट किया कि सर जरूर हम कम से कम एक आदमी के साथ इस तरह का काम करेंगे कि उसको सोसाइटी में इंक्लूजन मिले. We always used to say for a challenge people they don't need concessions, they need consideration. That is the mission statement of my organization. कंसेशन से कब तक उसको ले जाएं. तो ये जो सारी चीजें पॉजिटिव वे में इस सेक्टर को आगे बढ़ाने की है, दैट इज आई एम मोर पैशनेट अबाउट दैट रादर देन गोइंग इनटू द नेगेटिविटी कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. वी शुड थिंक क्या हो रहा है एंड व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट इन. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. Right, that is the wonderful way of looking at things, because जब आप नेगेटिविटी ढूंढोगे तो आपको वही मिलेगा, और जब आप पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो डेफिनेटली सॉल्यूशंस मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. सो सर, थोड़ा आपने वर्क और एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर कर दिया, बट आईड लाइक टू नो मोर ऑन टू इट कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, फिर सीईओ तक की जर्नी, देन हियर आल्सो इन सोशल सेक्टर यू हैव बीन वर्किंग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. थोड़ा सा उसके बारे में इन अ ब्रीफ नटशेल. एज आई सेड दैट 92 में जब मैंने इंजीनियरिंग करने के तुरंत बाद आई joined one of the organization here in my own place because I want to live, being a only son of my parent, I want to live with them. So there is a company known as Aroni Chemicals, specialty chemicals. I joined as a project engineer and I did lot of engineering projects, new projects for them. And in 1999 it has been taken over by a Total Group of the France. And then because I was having the experience of advanced environmental engineering, they told me to look after the health, safety and environment. They sent me to the Chidambaram University to complete my PG diploma in industrial safety. Then I worked for the industrial safety. Then they asked me to look into my PR qualities. They asked me to look after the PR, HR, IR, and they asked me to complete my MBA, executive MBA HR. And then I started looking after HR, PR, IR in 2007. But the social work was, from the family itself. My parents are very much active in the social work. My father was vice president of the Jain Samaj Nagda. My mother was chairperson of one of the organizations. तो ये पीछे से फैमिली से संस्कार में मिला था. So in 93 I joined the world largest NGO Lions Clubs International. उसका youth wing जो था Leo Clubs. And 93 to 99, 97, 98, 99 I become the state president of Leo Clubs. Then 99, 2000 I become the national president of Leo Clubs. तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत से सोशल वर्क करने का एक मन में जज्बा था. तो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देन आफ्टर द एज ऑफ 28 यू हैव टू जॉइन द लायंस इंटरनेशनल. सो आई जॉइंड द लायंस इंटरनेशनल. और मेरा जो दुबई जाने का हुआ जितेंद्र जी, वो भी क्रेडिट गोज टू द लायंस इंटरनेशनल, बिकॉज इंडिया लायंस इंटरनेशनल ने मुझे सीनियर लीडरशिप इंस्टीट्यूट, वहाँ लीडरशिप इंस्टीट्यूट होती है अलग अलग, राइट, जहाँ आपके अंदर अगर पोटेंशियल हो, इससे उसमें दुबई में लोग आए थे. एंड ऑन द फाइनल कन्वोकेशन सेरेमनी, जो जिस कंपनी में मैं गया उसके एमडी वहां बैठे. एंड दे हमारा एक सेशन होता है उसमें कि आपको एक एक्सटेम्पोर टाइप टॉपिक दिया जाता है जस्ट 1 मिनट पहले, एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दैट. एंड दे हैव माय टॉपिक वाज द हाउ टू बिकम एन आइडिया मशीन. एंड व्हेन आई स्पोक ऑन दैट, he was quite impressed and he immediately after the program offered me कि are you interested to join my company as a vice president. अक्टूबर में मैं गया था 2007 में. जनवरी 2008 मैं उनके ऑफिस को ज्वाइन किया. तो ये वहां फिर एज ए वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट, जो मेरी कंपनी थी वो स्टील, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर हाई नेटवर्थ इंडियंस करती थी. आफ्टर 1 year with my performance they have promoted me as a CEO of company. But 2009, as I said, I have to come back because of my daughter, and I founded my organization on 10th July 2009. जर्नी शुरू हुई 2014 तक. हम फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करना शुरू किया. सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल ट्रस्ट, एलिमको, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन सब के साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया. कई सारी स्कीम्स बनाई. आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि जो अभी कंट्री में यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, दैट वाज माय आइडिया टू द मिनिस्टर कि अगर हमारे पास डेटाबेस ही नहीं होगा तो हाउ वी कैन मेक द स्कीम्स, हाउ वी कैन थिंक ऑफ मूविंग फॉरवर्ड. एडीपी स्कीम, असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन, जो प्रीवियसली इट वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू एनजीओस, वी स्टार्टेड टू गिवन द आर्टिफिशियल लिम्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस थ्रू गवर्नमेंट इटसेल्फ बाय ओपन कैंप्स. और आज ये एक बहुत बड़ा
गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला और डिसेबल पर्सन ने कभी सोचा नहीं था कि he can get the battery operated tricycle of 42,000 under the ADP. 6 lakhs rupees का cochlear implant for hearing impairment is 100% funded by the government of India. So lot of things we did at a policy level. तो ये पूरी जर्नी, इसमें लायंस इंटरनेशनल का बहुत बड़ा सपोर्ट पर्टिकुलरली स्नेह को लेकर रहा। हम अपनी बिल्डिंग के लिए, हमें एक जमीन डोनेशन में मिली, चौधरी फैमिली इंडोनेशिया बेस्ड, 80 lakhs का प्लॉट उन्होंने हमको डोनेशन, एंड उस पे जो बिल्डिंग बना है उस पे 1 crore रुपीस लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन ने हमें दिया। लैंक्सिस जर्मन कंपनी, they have supported us under a CSR scheme, and there are so many people who supported a lot. मैं मेरे शहर की बात करूं तो मेरा हमेशा ये अनुभव रहा जितेंद्र जी, लोग वही बात है नेगेटिविटी की कि गवर्नमेंट ऑफिशियल सपोर्ट नहीं करते, ये सपोर्ट नहीं करता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू आर पुटिंग द थिंग्स। और मेरा अपना अनुभव आज तक का इस सेक्टर में रहा है कि मुझे कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, मीडिया पीपल से, इंडस्ट्री जगत से कभी नेगेटिव चीज नहीं मिली, बिकॉज योर इंटेंशन इज मोर। करेक्ट। तो वो एक पॉजिटिविटी का काफी इम्पैक्ट इस पूरे करियर में, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो ये हो। अभी रिसेंटली ऑन 1st of January आई हैव टेकन ओवर द चार्ज ऑफ परिवार, विच इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट पेरेंट्स कॉन्फेडरेशन। लगभग मोटा मोटा 1 लाख फैमिली जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों की है, वो उनके पेरेंट्स इसके मेंबर हैं। 31 स्टेट्स में हमारी स्टेट फेडरेशंस हैं। We have 6 zones in India, and through that we are trying to do the advocacy for the intellectually challenged, because they cannot do. So we are very closely working with the government of India for intellectually challenged people also. That's really This wonderful. is all about my journey. बहुत बहुत अच्छी जर्नी रही है सर, आपने इतनी सारी चीजों पे काम किया, पॉलिसी लेवल तक आपने काम किया है। बिकॉज व्हेन यू वर्क ऑन पॉलिसी लेवल, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती है कि हाँ यहाँ यहाँ काम करने की जरूरत है। और आपने ये भी सही कहा कि हम लोग गवर्नमेंट को कोसते हैं, बट होता क्या है कि हम लोग है ना एक आध लोगों से मिले होते हैं और उसके बेसिस पे हमारा परसेप्शन ये बन जाता है कि गवर्नमेंट के सभी लोग खराब हैं या सभी लोग अनसपोर्टिव है, तो हमको सपोर्ट नहीं मिलता। तो वो चीज गलत है। जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। तो 1-2 लोगों के बेसिस पे परसेप्शन बनाना ठीक नहीं है। तो सर अगर हम बात करें आपके विजन, मिशन, गोल को लेके अगले 5 साल में, 10 साल में क्या क्या चीजें और हैं जो आपके मन में, जो आप करना चाहते हैं? Right. See, one thing I am very clear. In 2016, when we drafted a Rights of Persons with Disability Act, उसके पहले 1995 का एक्ट था यहाँ, Persons with Disability Act, and जब उसको ड्राफ्ट किया तो we notified 21 types of disability instead of 7, जो 95 में थी. Right. Now, out of 21, what I feel that the most vulnerable disabilities are intellectually challenged people. Why I am saying like so? Because if you think of all other disabilities, these people with disabilities can do the advocacy themselves. हम कई बार देखते हैं कि अगर ब्लाइंड लोगों के लिए काम नहीं होता है तो वो खुद धरना दे देते हैं। हियरिंग के लिए नहीं हुआ तो वो खुद आ जाते हैं, लोकोमोटर के लिए नहीं हुआ तो वो खुद आ जाते हैं। लेकिन when we talk of intellectually challenged people, they don't know what are their rights. And that is why even after having all the senses, what we say कि एक कंप्यूटर तो पूरा है लेकिन प्रोसेसर उसमें नहीं। सो आँख, कान, नाक सब कुछ उनका प्रॉपर है, फिजिकली दे आर ओके, बट बिकॉज दे आर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड, दे डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू, एंड इसलिए उनके साथ काम करना भी टफ है और उनके लिए काम करना भी टफ है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हाउ टू मेक देम सेल्फ सस्टेनेबल, बिकॉज हम अगर मेरे विजन की बात करें तो मेरा जो हमारा स्टेटमेंट है, दे डोंट नीड कंसेशंस, दे नीड कंसिडरेशन। कंसेशनों से जीवन नहीं चलता। फॉर अ लाइफ लॉन्ग जर्नी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खुद सेल्फ सस्टेनेबल बने। एंड व्हाट आई मीन हियर बाय सेल्फ सस्टेनेबल मींस वो कमाने लगे ऐसा जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट वो अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो होती है, क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें तो आपके और मेरे लिए हमें बड़ा आसान लगता है शर्ट पहन, हमें बड़ा आसान लगता है पैंट पहन, हमें बड़ा आसान लगता है ब्रश कर, बट हमारे इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज है, हाउ टू डू इट। वे अपना एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ही अगर कर लेंगे तो उनके साथ जो उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व है उन सबको कराने में, वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से लग जाएंगे, और वो एम्प्लॉयमेंट से लग जाएंगे तो इस देश की जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन वो दे पाए। सो इट मे नॉट बी अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, बट इट विल बी एन इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो
विजन है कि इन सब लोगों को हाउ टू मेक देम सेल्फ सस्टेनेबल, एंड दूसरा सोसाइटी का एक मिथ खत्म करना। ये मेरा एक बड़ा गोल रहा शुरू से। एंड आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल कि जब मैं शुरू किया, चूंकि हमारी सोसाइटी में हम ग्रोन अप ही ऐसे हुए कि हमको कहा जाता है कि यार ये बेचारा है, इसकी मदद करो, तो दया के भाव से देखो, इसको मदद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। दीज आर द थिंग्स इन द सोसाइटी। हम कभी भी उसको उस भाव से नहीं देखते कि उसके अंदर भी क्वालिटीज। तो जब मैंने शुरू किया था तो लोग मेरे यहाँ आते थे स्नेह में, यार ये खाना बचा हुआ है, ये ले लो बच्चों को दे दें, ये कपड़े पुराने हैं, ये ले लो बच्चों को दे दें। आई ऑलवेज रिफ्यूज्ड। आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि जितने बच्चे हैं वो मेरे अपने बच्चे। अगर मैं अपने बच्चे को पुराना कपड़ा नहीं पहनाता हूं तो मैं किसी बच्चे को पुराना कपड़ा बचा हुआ खाना नहीं देता। एंड देन मुझे थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पर जाकर लोगों को एक बात बताना, उन्हें ये बताया मैंने कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गॉड। भगवान कौन है? जो काम, क्रोध, मान, माया, मोह, लोभ से परे, स्पिरिचुअल लेवल। दुनिया में हम जितने गलत काम करते हैं ब्रेन से, और मेरे इन बच्चों में ब्रेन ही नहीं है। दे आर द प्योरेस्ट सोल ऑन दिस अर्थ, एंड यू वांट टू गिव ये बचा हुआ खाना, कपड़ा टू द गॉड, देन दे अंडरस्टूड। एंड जितेंद्र जी, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि आज कई बार हमारे पास ऐसे इन्विटेशन आते हैं कि हमारे यहाँ शादी है, रिसेप्शन में आपके बच्चों को पहले हम स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड दे यूज्ड टू गिव द वीआईपी ट्रीटमेंट, वहां बिठा के बच्चों को खिलाते हैं, एंड देन उनका रिसेप्शन शुरू होता है। महिला संगीत की शुरुआत हमारे बच्चों के कल्चरल प्रोग्राम से। सो दिस आर द कल्चरल चेंज। So that's very important in the society. That is what I am looking कि कंट्री के अंदर ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचे, they can understand कि ये सब बच्चे इस सोसाइटी का हिस्सा है, उस गॉड का हिस्सा है। And for the parents, I always used to say this is the special gift from the God, because God ने मुझे बच्चा क्यों दिया? वो समझता है कि I am capable of handling it, and that is why He is given to me. So मेरा अपना जो मिशन, विजन, गोल, सब कुछ कह लीजिए, वो सिर्फ इतना ही है कि ये चैलेंज लोगों को इस समाज के अंदर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जीने का मौका मिले। सोसाइटी उनको दया के भाव से ना देखे, उनको अपॉर्चुनिटीज दीजिए। उनको जब आप अपॉर्चुनिटीज देंगे, इन माय ओन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव सो मेनी इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड किड्स हु आर एडल्ट्स हु आर डूइंग द जॉब हियर, गेटिंग द सैलरीज, बिकॉज वी हैव ट्रेन्ड। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि on the last 3rd December, one of our children got the national award from the President of India as a best challenge person who came to us as a children with disability, but now he's working as a therapy assistant. So if we give them the opportunity, they will definitely prove that, and they are better than a normal person, I'm telling you. Correct. So that is what this is really wonderful. Like they only need the thing which from us is opportunity and inclusion, और ये opportunity हम क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए जहां पे भी पॉसिबल हो, जिस तरह से भी। Correct. कुछ पेरेंट्स मिलके कई जगह पे काम कर रहे हैं इकट्ठे, कुछ एनजीओस काम कर रहे हैं, तो दिस इज द वे अपॉर्चुनिटी कैन बी क्रिएटेड कि छोटे छोटे काम वहां पे इस तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन के पास में आ जाएं कि ये बच्चे उस काम में इन्वॉल्व हो पाए, सीख पाए, कर पाए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे भी हैं। जैसे लिज्जत पापड़ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक छोटे से जगह से कुछ फीमेल्स ने एक साथ काम शुरू किया था, और आज की डेट में इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा बहुत सारी चीजें की जा सकती है इन बच्चों के साथ में, जहाँ पे ये इंक्लूड हो, अपॉर्चुनिटी इनको मिले और ये लाइवलीहुड पे भी काम करे। और आपने जैसे एग्जाम्पल अभी शेयर किया ना, दिस इज वंडरफुल कि वो बच्चा पहले डिसेबल था और खुद अपनी चीजें नहीं कर पाता था, आज की डेट में वो दूसरों को सपोर्ट कर रहा है। करेक्ट। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। राइट। तो सर, अगर हम बात करें कि आपकी जो जर्नी रही है उसमें आपने कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपको लगता हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने सीखी, तो वो क्या चीज है? या सी व्हेन अब हम इस सेक्टर में जब काम करते हैं, बिकॉज जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में काम किया, और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में काम करते हो तो आपको बहुत टफ होना, और जब आप इस सेक्टर में आते हो तो आपको बिल्कुल रिवर्स होना, बिकॉज वो एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वहां आप टफ नहीं हो सकते बिकॉज इट्स अ सोशल सेक्टर, और बिकॉज वो आपने अपनी चॉइस से सिलेक्ट किया है। यहाँ जो भी लोग आएंगे वो अपनी चॉइस से आएंगे। फील इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सेक्टर रादर देन द प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का अपना रोल है, बट फील इज मोर इम्पोर्टेंट। अनटिल एंड अनलेस देयर इज नो फील, तो वो फिर आपको जो डिजायर्ड आउटकम है वो नहीं आते। तो जब मैं इस सेक्टर में आया तो ये एक बड़ा चेंज
मुझे अपने आप में करना धीरे धीरे हुआ, ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जब आप ग्रोन अप हो जाते हो तो उसको चेंज करना बहुत होता है। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस, पर्टिकुलरली व्हेन यू वर्क विद द इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पीपल। तो पेशेंस और पेशेंस, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो इस सेक्टर के लिए रिक्वायर्ड। ये यहाँ पर देखा। सेकेंडली मैंने कहा कि पेशेंस और आपका पेशेंस दोनों चाहिए, साथ में पॉजिटिविटी, है ना। विदाउट पॉजिटिविटी, बिकॉज आपके पास रोज ऐसे पेरेंट्स आते हैं, ऐसे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आते हैं जिनकी अपनी इतनी नेगेटिव स्टोरीज होती हैं, एंड आप खुद उस दौर से गुजर रहे होते हैं, तो समाज आपको सपोर्ट नहीं करता है। कई बार मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहला एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट होता है फैमिली के साथ बच्चे का, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस पे तो खर्च करना ही बेकार है क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाएगा। एक लेवल के बाद वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इधर उधर घूमने के बाद, और इन सब सिचुएशनों में जब वो आपके पास आते हैं और आपसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिव चीजें, बहुत सारी बातें, उनका उसको एक्सेप्ट ना कर पाना, ये सब चीजें जब आती है तो फिर ये जो चीजें मैं आपको कह रहा हूँ कि पेशेंस, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये आप बहुत लर्न करते हैं, और ये लर्न करके जब उनको आप काउंसिल करते हैं तब वो आपसे कन्विंस होते हैं। और मतलब मैं मेरे यहाँ पर मतलब अच्छे अच्छे पेरेंट्स, आई एम टेलिंग यू, इवन कुछ आईएएस के बच्चे, कुछ इवन अभी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, उनका बच्चा, जब हम उन लोगों से बात करते हैं इवन उनमें भी एक्सेप्टेंस का लेवल, लेकिन फिर उनको कहीं कन्विंस करके उस लेवल तक लाना, तो ये सब चीजें तभी होती है जब ये आपके अंदर हो और आप इन चीजों को लर्न करके उनको कन्विंस कर सकते। करेक्ट, एक्सेप्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, बिकॉज पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि ये एक प्रॉब्लम है या ये एक चैलेंज हो सकता है। तो उनको तो ये लगता है कि ना कि मेरा बच्चा जो है बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, बेस्ट होना चाहिए, सब किसी के साथ कुछ फ्लॉ भी हो सकता है, सो दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो सर, जैसे कि आप डिसेबिलिटी सेक्टर में काफी टाइम से काम कर रहे हैं और देयर आर 21 डिसेबिलिटीज व्हिच यू हैव मेंशन्ड, बट उसमें से कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट और थोड़ा सा सपोर्ट ज्यादा देने की जरूरत है, तो थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं। एज आई सेड कि 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज तो हो गई है, बट द मोस्ट वल्नरेबल, जिसपे द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 99 में पार्लियामेंट ने पास किया था, और जब 99 में ये एक्ट पास हुआ उसके पीछे द ऑब्जेक्टिव वाज द सेम, कि देयर वर 4 disabilities, namely autism, cerebral palsy, intellectual disability and multiple disability. Multiple disability means the combination of more than one disabilities. ये 4 disabilities में एक पेरेंट की वरी होती है, what will happen to my child after me, because ये most vulnerable है, the child cannot do the self advocacy, he doesn't understand his own rights, तो पेरेंट्स का ये वरी था, दैट्स व्हाट गवर्नमेंट अंडरस्टूड इन 1999 और द नेशनल ट्रस्ट एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑटिज्म, सीपी, मल्टीपल डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैज बीन पास्ड। उसमें एक प्रोविजन उन्होंने दिया है व्हिच इज द वंडरफुल, एज यू नो दैट इन दिस कंट्री व्हेन you become the adult, that is 18 years and above, you can take your own decisions, but these 4 categories children, they cannot take their own decision. Therefore there was a provision of a legal guardianship even after the age of 18 years in the National Trust Act, whereby any parent or sibling or any organization registered with the National Trust can become the legal guardian of that child, and the purpose of that is care, maintenance and look after the property of that child after the death of the parent. So that's a very good law. In each and every district they formed a local level committee, LLC, under the chairmanship. It's a 3-member committee. The chairman is the collector of the district and 1 person with disability, and 1 member is the organization of the National Trust, which see the case to case and then appoint a legal guardian so that the worry of a parent can be addressed. Right. And the best part of that act is that if even आज के समय में हम कई बार देखते हैं कि नॉर्मल वे में भी ब्रदर के साथ चीटिंग करता है, True. बेटा बाप के साथ चीटिंग कर देता है ना, तो इसको अवॉइड करने के लिए कि उस बच्चे की प्रॉपर्टी कोई और ना ले ले, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो भी कहीं और ना चली जाए, उसके लिए ये प्रोविजन है कि अगर किसी ने उसके राइट्स को इस तरह से करने की कोशिश करी तो अगर उन्होंने कोई सेल डीड या कुछ कर दिया तो वो भी कैंसिल हो जाती है। दैट इज द ओनली लॉ इन द कंट्री। करेक्ट। सो ये मोस्ट वल्नरेबल होने के कारण इस लॉ को लाए, और हम लोग उसी का, क्योंकि अभी भी पेरेंट्स को पता नहीं,
नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से हमने एक स्कीम शुरू की थी हेल्थ इंश्योरेंस इस कंट्री के अंदर। हेल्थ इंश्योरेंस इन इंटेलेक्चुअली चैलेंज के लिए अवेलेबल नहीं था, बिकॉज प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है, उनको कन्वर्जेंस आते हैं, उनको ओपीडी की जरूरत होती है, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और इसके लिए कहीं कोई कवरेज नहीं है। सो द नेशनल ट्रस्ट स्टार्टेड द निरामया हेल्थ इंश्योरेंस, whereby they are providing a health insurance of 1 lakh rupees to all these 4 categories in a premium of just 250 and 500 rupees per year, irrespective of age, caste and income. That is the only scheme in the country. And the best part is कि इसके अंदर therapy is covered, OPD is covered up to the extent of 45,000 rupees per year. So, but the जितेंद्र भाई best तो ये है, but इसका worst part मैं बताऊं कि 2011 की सेंसस ये कहती है कि इस कंट्री में 2.68 करोड़ चैलेंज पीपल थे। आउट ऑफ देम 85 lakhs were under these 4 categories. Okay. 2011. Now we are sitting in 2023. अभी WHO कहता है कि 5% चैलेंज पीपल तो मिनिमम है। WHO 15% बोलता है, हम 5% भी मान लें तो 140 करोड़ पॉपुलेशन के हिसाब से the 5% is 7 करोड़ is the total, and 7 करोड़ के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो द नंबर ऑफ दिस 4 डिसेबिलिटीज विल रीच टू समवॉट अबाउट 2 करोड़। एंड अगर निरामय का डेटा आप देखेंगे कि कितने लोग एनरोल है कंट्री में, तो इट इज ओनली 1.75। तो अभी भी लोगों तक अवेयरनेस नहीं है। एंड आप आश्चर्य करेंगे कि आउट ऑफ 1.75 lakhs मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने 80,000 लोगों को रजिस्टर्ड किया है इसमें मध्य प्रदेश से। सो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, विच वी डिड। सो बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। इतनी अच्छी स्कीम 500 रुपए में आप बताइए 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम ग्रुप, इट इज अवेलेबल। एंड जब उसका रिन्यूअल करते हैं तो 250 रुपये ही लगता है। बीपीएल कैटेगरी के लिए सिर्फ 250 रुपया चार्ज करते हैं, और जब रिन्यूअल होता है तो 50 रुपये लेते हैं। बट स्टिल, और मैं तो सबको कहता हूं, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, हर स्टेट गवर्नमेंट को इस स्कीम को ऑन करना चाहिए, एंड दे शुड पे द प्रीमियम डायरेक्टली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स they are giving some pension to the challenged people. So why can't they transfer 1 month pension to this scheme? Because it is a scheme of the government of India. They can transfer it and they can give the benefit of rupees 1 lakh treatment. ओपीडी कवरेज किसी स्कीम में नहीं है, आप कितना ही प्रीमियम दे दीजिए। इस स्कीम के अंदर जब बच्चा बीमार हो गया, फीवर आया, डॉक्टर के पास गया, 500 रुपए डॉक्टर की फीस, 1000 रुपए पैथोलॉजी टेस्ट, 2000 की दवाइयां, वो सब भी उसको रिएम्बर्स हो जाता है। और इसमें हमने कहीं एम्पेनलमेंट का प्रोविजन नहीं है हॉस्पिटल का। इट इज अ रीएम्बर्समेंट बेस्ड पॉलिसी, सो दैट एक गांव का आदमी भी गांव में इलाज करा ले और उसको पैसा मिले। सो सच ए ब्यूटीफुल स्कीम, बट अगेन द थिंग इज दैट कि अवेयरनेस नहीं है। देयर आर सो मेनी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई थिंक यू वॉन्ट बी अवेयर कि पढ़ाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन जाने के लिए चैलेंज लोगों को 20 लाख रुपए पर एनम का स्कॉलरशिप देती है, एंड उनका वो बजट लैप्स हो रहा है 20 lakhs पर एनम। कैन यू इमेजिन? एंड वी आर नॉट एबल टू गेट द पीपल, वो बजट लैप्स हो जाता है। So the lot of schemes are available, but the problem is कि अवेयरनेस का कमी है, और वो बहुत ज्यादा जरूरत है। इवन पेरेंट्स आर नॉट अवेयर। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिसेबिलिटी सेक्टर 4 पिलर हैं, 4 P's: पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड पॉलिसी मेकर्स। और अभी दे आर ऑल वर्किंग इन साइलोस। अनटिल एंड अनलेस दे वर्क टुगेदर, तब तक हम इस सेक्टर में एक बड़ा क्रांतिकारी चेंज नहीं ला सकते। एंड from this we are trying. Correct, and that is really wonderful thing you are doing, because आपने जैसे बताया कि जो मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन आपके एनजीओ के थ्रू हुए हैं, मतलब that is the highest number pan India. So the number is really huge, but जो रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट के पास डेटा है ऑफ the registered people is very less. तो until unless जब तक पूरा डेटा नहीं होगा, तब तक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्कीम पहुंचेगी नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट भी वहीं तक जा सकती है जहां उनको पता है कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हद तक ये जाती है कि एटलीस्ट वो अपने बच्चों का सर्टिफिकेशन कराएं, उनको रजिस्टर कराएं विद प्रॉपर जो गवर्नमेंट एजेंसी उनके सिटी में है या एरिया में है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप दे कैन डू। और पेरेंट अगर इंक्लूड होंगे इस मुहिम में, इस सोशल कॉज में, ओवरऑल सारे के सारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एजुकेशन वाला बेनिफिट आपने बताया, दैट इज द थिंग विच मोस्ट पीपल जो इस सेक्टर में काम भी कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा। तो दैट इज। मैं एक और चीज यहाँ पे एजुकेशन में आपको बताना चाहूंगा। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में हमने एक राइट दिया है हमारे बच्चों को। राइट टू एजुकेशन से एक स्टेप आगे कि 18 इयर्स तक के बच्चों को दे कैन टेक द एडमिशन इन एनी स्कूल ऑफ देयर चॉइस, फ्री एडमिशन।
नो स्कूल कैन से नो, एंड अगर वो ना करता है उसको एडमिशन देने से, एंड इन एनी क्लास दे कैन टेक द एडमिशन। अगर वो ना करता है तो सेक्शन 89 ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट सेज, व्हिच इज द ओनली एंड ओनली एक्ट इन द कंट्री वेयर सच टाइप ऑफ प्रोविजन वी हैव मेड, that contravention of any section of this act or the rules or the regulation made thereunder attracts the penalty up to ₹5 lakhs। ये प्रोविजन इस एक्ट में है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, इसलिए जब कोई स्कूल उन्हें मना कर देता है तो चुपचाप घर पे बैठ जाए। बट आई वुड लाइक टू से फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म दैट प्लीज प्लीज आपके बच्चों का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में कराइए, ये उनका कानूनी अधिकार है। दे कैन गेट their education free of cost in a school of their choice। Wonderful sir, this is really important thing people should be aware of। और इसी के साथ में जैसे हम बात करें कि हमको कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स दीज पीपल, सपोर्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को करना चाहिए, तो उसमें कौन सी और चीजें हैं, जैसे इंक्लूजन की अगर हम बात करें, पेरेंट्स, सोसाइटी किस तरह से इंक्लूड हो सकती है इन चीजों में सपोर्ट करने के लिए? देखिए, मैंने व्हाट आई सेड, सबसे पहले जो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ, फैमिली एंड सोसाइटी। तो पहली जिम्मेदारी तो परिवार की है। हम कई बार देखते हैं कि इवन शादी में भी जाना है तो परिवार उस बच्चे को घर पे छोड़ देती है, क्योंकि उन्हें शर्म आती है कि बच्चा क्या करेगा, राइट। तो ये एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होता है फैमिली से। तो मेरा सबसे पहले तो पेरेंट्स से कहना है कि आप लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता करना छोड़, वो जब तक नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने से शुरुआत करना होगी। उस बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। हम हमारे सेंटर पे भी देखते हैं कि अगर पेरेंट्स आता है तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि तुम्हारा एक बच्चा अगर एक पब्लिक स्कूल में है और एक बच्चा हमारे स्कूल में है, तो हमारे स्कूल में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको सब कुछ चैरिटी में मिल जाए, ड्रेस, बैग, शूज, सॉक्स, बुक्स, व्हाई यू थिंक लाइक दैट। और इसलिए हमने हमारे यहाँ कुछ सिस्टम बनाए हैं जितेंद्र जी। हम बच्चों को खाना देते हैं लंच, लेकिन हम रोटी नहीं देते। हम रोटी कहते हैं कि पेरेंट देगा डब्बे में, हम बाकी सब देंगे, फ्रूट्स देंगे, हम उसको वेजिटेबल्स देंगे, दाल चावल देंगे, बट हम रोटी नहीं देंगे। तुम सुबह उठो, तुम बनाओ, यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये पहला पॉइंट है जहां से स्टार्ट होता है। देन हम समाज की तरफ आते हैं। तो हम समाज को कहते हैं जब पेरेंट करेगा तो समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि समाज तक जब ले जाओगे ही नहीं तो एक्सेप्ट कैसे। माई डॉटर, आई एम टेलिंग यू, और नॉट ओनली माई डॉटर, मेरे स्कूल के बच्चे आज जिस तरह से शादियों में जाके एक प्रॉपर वे में खाना खाते हैं, क्योंकि जब तक हम उन्हें ले ही नहीं जाएंगे वो अंडरस्टैंड क्या करेंगे कि व्हाट आर द एटिकेट्स, किस तरह से खाना। शुरू में हो सकता है वो खाना गिराएगा, कपड़े गंदे करेगा, बट दैट इज उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट देम एज इट इज व्हाट दे आर, एंड देन वी हैव टू ट्रेन, और फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी। तो देन कम टू द एम्प्लॉयमेंट। फिर एम्प्लॉयमेंट में जब उनको ले जाएंगे, उनकी क्वालिटीज को सोसाइटी समझेगी। एक इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चा कभी भी बाहर के एनवायरनमेंट से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा आउटकम देता है। हमको तो जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वो सब चीजें कोई मायना ही नहीं रखती। वो सिर्फ फोकस, वर्क 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 एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे हैं जिनको हम 4 बजे कहते हैं कि आपका टाइम हो गया, घर चले जाओ, तो वो ये कहता है कि अभी एक कमरा क्लीनिंग करना बाकी है, जो नॉर्मल आदमी कभी नहीं कहे। तो दीज आर द थिंग्स, वो सोसाइटी के सामने जब आएगी तो वो उनको एक्सेप्ट करेगी, बट उसको लाना पड़ेगा, और लाएंगे तो डेफिनेटली इंक्लूजन आएगी। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। करेक्ट, चीजें सिंपल है। हम एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे खुद से, और इंक्लूड करना शुरू करेंगे बच्चों को बाकी जिम्मेदारियों के साथ भी, और थोड़ा थोड़ा हम उनको सिखाने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये तुम ऐसे कर सकते हो, तो वो लोग भी कर सकते हैं और वो लोग अच्छा कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट बताया यहाँ पे। तो सभी से यही गुजारिश है कि भाई आप जो आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी दो, सबसे पहली चीज ये है। यस। तो सर, अब हम वापस से आपके बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप ग्रो हो रहे थे, बच्चे से बड़े हो रहे थे, तो उस टाइम पे जो आपका नेचर था और आज की डेट में जो नेचर है उसमें क्या डिफरेंस है? वर यू इंट्रोवर्ट देन और अभी एक्सट्रोवर्ट, या मिक्स ऑफ बोथ? तो किस तरह से आपका नेचर रहा? नहीं, मैं शुरू से जितेंद्र जी एक्सट्रोवर्ट ही रहा। मैं स्कूल में भी अपने टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट रहा, क्योंकि मुझे बहुत मतलब कहना चाहिए कि एक तरफ मेरा इंटेलेक्ट भी अच्छा था, तो साथ में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिव पार्टिसिपेट करता था। तो लोगों के साथ बात करना, घूमना, नए नए दोस्त बनाना, ये हमेशा शुरू से बचपन से मुझे अच्छा लगता था, और आज भी मैंने अपने अंदर अपने बच्चे को जीवित रखा। मैं ये मानता हूँ कि एक पेंसिल से अपनी लाइफ को सीखना चाहिए, क्योंकि पेंसिल से हम 6 चीजें सीखते हैं,
और वो हमेशा जब मैं छोटा था तो हमारे स्कूल में इस तरह के लोग आया करते थे, उन्होंने ये बातें बताई तो वो हमेशा मेरे दिमाग में रही कि पेंसिल जो होती है ना, तो जब एक तो ये कि पेंसिल को हम जब पकड़ के लिखते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखो कि उस पेंसिल से जो लिखाई हो रही है उसके पीछे कोई है, एक हाथ है जो उसको लिख रहा है। तो आपके पीछे हमेशा कोई ना कोई हाथ है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये जो पेंसिल है ये बाहरी आवरण, जो पद प्रतिष्ठा ये सब आउटर है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो मेन है अंदर, जो लिख रहा है, राइट। और जब पेंसिल को थोड़ा छोटा हो जाता है तो हम शार्प करें, तो अपने आप को हमेशा शार्प करते हैं आप, नहीं तो फिर मुश्किल होगा, राइट। और जब आप लिखते हैं पेंसिल से किसी कॉपी पे तो उसका इंप्रेशन अगले पेज पे आ जाता है। तो ट्राई टू डू द थिंग्स विच वो पूरी दुनिया पे कोई इंप्रेशन छोड़ के जाए। एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ पेंसिल की तरह एवरी डे एक दिन कम हो, तो जो अच्छा करना है उतना कर दीजिए एंड गो अहेड। ये बात। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज लास्ट, कि पेंसिल से जब हम लिखते हैं और कुछ गलती करते हैं तो उसको हम इरेज करते हैं। तो ये इंसान भी जो है वो गलतियों का पुतला है, गलतियां होती रहती हैं, आप उसको एक्सेप्ट करें, इरेज करें, अपने आप को करेक्ट करें और आगे। सो दैट इज, ये पूरी चीजें मैं सोचता हूँ और उसको ट्राई करता हूँ कि अपनी लाइफ में जितना इम्प्लीमेंट कर सकूं उसको करने की कोशिश करें। सिंपल सा थॉट है लेकिन बहुत ही पावरफुल थॉट है। अगर हम इन 6 चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो कर लें तो 90% प्रॉब्लम जो हमारी लाइफ की है वो तो ऑलरेडी खत्म है। बाकी बचा 10%, उसके लिए थोड़ा बहुत एफर्ट करेंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। वेरी ट्रू। तो सर, अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो आपकी लाइफ में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया होगा, तो कौन वो लोग थे जिनको आप क्रेडिट देना चाहो कि उन्होंने आपको लाइफ में बहुत सबसे ज्यादा सपोर्ट किया हो? मैं बात करूं अगर सेक्टर की, तो सबसे पहले तो मैं सबसे पहला धन्यवाद और सबसे ज्यादा क्रेडिट गोज टू माय डॉटर सोनू, जो मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि शायद अगर वो ना होती तो मैं आज आपसे बात भी नहीं कर रहा। शी इज द की इंस्ट्रूमेंटल इन दैट। सेकंड, मेरी फैमिली, मेरे मदर फादर, मेरी वाइफ, मेरी 2 सिस्टर्स है वो भी यहीं लोकली हैं। इन सबके कारण आज मैं महीने में 15 से 20 दिन ट्रेवल करता हूँ एंड पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाने का काम हम कर रहे हैं इन डिफरेंट मीडियम से। उनका सपोर्ट। देन मैं लायंस क्लब्स इंटरनेशनल, उसका बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, क्योंकि वो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन उसकी परमानेंट प्रोजेक्ट है एंड दे आर सपोर्टिंग अस रेगुलर एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन की बेस्ट पार्ट ये है कि जहां 15 लाख मेंबर 210 कंट्रीज में है, वहां उसके पास जितना डोनेशन आता है जितेंद्र जी, दे आर नॉट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी ऑन देयर एडमिन कॉस्ट। 100% दे आर गिविंग, LCIF जो है 100% इज पासिंग ऑन फॉर अ प्रोजेक्ट। उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में वो देते हैं। The most transparent organization of the world. So that LCIF. Then I would like to thank one name, देवेंद्र चौधरी जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने मेरे ड्रीम को समझ के ये लैंड हमें दी। आज से 10 साल पहले 80 लाख रुपए का प्लॉट देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, जब हम बिल्कुल नए थे, जब हमारे बारे में लोग जानते भी नहीं। और हमें पहला सपोर्ट किया था CSR में लैंक्सिस जर्मन कंपनी ने 5 लाख रुपए का। जब हमने 2009 जुलाई में शुरू किया और अक्टूबर में उन्होंने 5 लाख रुपए 2 कमरे को देखकर, हमारे इंटेंशन को देखकर हमको दिया, जब लोग 5 रुपए भी देना पसंद नहीं। राइट। साथ में मैं स्पेशली कहना चाहूंगा मीडिया पीपल। आई एम टेलिंग यू, लोग मीडिया की कितनी बुराई करें, मैं ये कहूंगा कि मीडिया, अगर आप पॉजिटिव काम करते हैं तो मीडिया उसको हाईलाइट करता है, मीडिया सपोर्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली अ जर्नलिस्ट आल्सो अ ह्यूमन बीइंग। करेक्ट। एंड वो भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। ओनली थिंग, आप कितना पॉजिटिव करते हैं, आपके इंटेंट क्या है। मतलब यू वॉन्ट बिलीव कि दैनिक भास्कर, जागरण जैसे पेपरों में 4-4 कॉलम की न्यूज अपने आप में, मुझे लोग कहते हैं कि क्या तुम करते हो, एंड वी आर नॉट गिविंग एनी एडवर्टाइजमेंट, आई एम टेलिंग, बिकॉज इट इज नॉट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो सपोर्ट होता है वो, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अवेयरनेस मीडिया ही कर सकता। आज आप ये काम कर रहे हैं, ये बड़ा काम कर रहे हैं, ये पता नहीं कितने लोग इसको देखेंगे, कितने लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगा, कितने लोग स्कीम के बारे में समझेंगे। तो मीडिया हैज अ बिग रोल, और वो पॉजिटिव वे में काम जब करता है तो उसके ड्रास्टिक रिजल्ट्स आते हैं। So I would like to thank the media people also. I would like to thank the bureaucracy. I would like to thank the political people. मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहां सब भूल जाते हैं कि वो किस पार्टी के हैं। हमारे प्रोग्राम्स में ऑल द पार्टी पीपल, बीजेपी, कांग्रेस, आप, दिस दैट, एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, बिकॉज आवर मिशन इज वन। तो ये इन सबको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा, और मैं यही कहूंगा कि हमारे इंटेंट अच्छे हों। तो वही है कि एकला चला था
कारवां बनता चला गया, लोग जुड़ते चले गए। ऐसे ही शुरुआत होती है, छोटी सी जगह से शुरुआत होती है, धीरे धीरे बड़े बनते हैं। और Yes. आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि ऑब्जेक्टिव जो है मीडिया का स्प्रेड आउट करना है न्यूज को। आप हम ये सब मानते हैं कि वो आज की डेट में गलत न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं, बट एक्चुअली में पॉजिटिव न्यूज भी वही स्प्रेड कर रहे हैं। तो Correct. वो दोनों चीजें हैं, हम देखते क्या है और समझते क्या है, वो हम पर है। वो अच्छी न्यूज भी फैला रहे हैं, वो खराब भी फैला रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें अच्छी चीज पकड़नी है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो सर, अगर हम Yes. बात करें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन को लेके, उसको वो आपकी लाइफ में किस तरह से आती है, या क्या चीजें हैं जो आपको मोटिवेट और इंस्पायर करती हैं? देखिए, मुझे कई लोग ये कहते हैं कि यार आप इतने सारे प्रोग्राम्स कर लेते हो, इतनी चीजें करते हो, कैसे करते हो? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंसान को थकान अपने दिमाग से होती है, शरीर से कभी थकान नहीं। व्हेन यू एंजॉय योर वर्क, तो वही आपको एनर्जी दे। एंड माई सोर्स ऑफ एनर्जी इज माई चिल्ड्रन। जब हम उनके लिए काम करते हैं और जब उसका आउटकम हम देखते हैं, हमें एक बच्चे को भी ठीक होते हुए देखते हैं, तो वो हमें और 100 बच्चों को ठीक करने की प्रेरणा देता है और उसको काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये इंस्पिरेशन ये बच्चे ही हैं। ये इंस्पिरेशन हमारा वो काम है जो हम खुश होके करते हैं। जब हम काम को ये सोच के करें कि अरे ये और आ गया, तब हमें थकान होती है। अदरवाइज हम अगर हैप्पीली कोई चीज को करेंगे, खुश होके करेंगे, तो कभी न तो हमें थकान होगी, ना हमें ये लगेगा कि यार ये क्या कर। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वही करो जो आपका मन कहता है। और मैं तो इस सेक्टर में सब कुछ छोड़ के आई केम बाय माय ओन चॉइस, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है हर चीज करके। और इसलिए मैं कभी अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करता, कभी ऐसा महसूस नहीं करता कि मैंने ये क्या डिसीजन लिया। अब तो ये कह सकता हूँ कि मैं कई बार कहता भी हूँ कि कई एडिक्शन होते हैं, मुझे भी ये एडिक्शन हो गया है। और मेरी डॉटर जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, जब उससे ये पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी दादी का धर्म क्या है, तो वो कहती है कि मेरी दादी जैन धर्म की पालती है। और वो पूछते हैं कि पापा का धर्म क्या है, तो वो कहती है कि उनका धर्म है स्नेह। तो वो भी ये समझने लगी है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जब हम जिस सेक्टर में जहां भी काम करें, खुश होके करें, हम मन से करें, तो डेफिनेटली उसमें आउटकम अच्छा ही आएगा। तो सर, एनी एडवाइस ऑन टू इट कि सक्सेस को लेके हम सभी के विचार अलग होते हैं, तो आपके विचार क्या है? देखिए, सक्सेस स्टोरी और फेलियर स्टोरी ये सब काम के बाद बनती है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग काम करने आए होंगे, जिस दिन वो काम शुरू करते हैं एक अच्छा इंटेंशन ही होता है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि फेलियर इज बिकॉज ऑफ द टाइम, परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती है। कौन आदमी फेल होना चाहिए? नोबडी वांट्स टू बी फेल। हर कोई सक्सेस होना चाहता है। Correct. लेकिन हम अपने नजरिए से देखते हैं, हम उस फेलियर के पीछे का रीजन समझने की कोशिश ही नहीं करते। क्या कोई भी आदमी छोटा से छोटा काम भी फेल होने के लिए करना चाहता है? कोई भी नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा। तो सक्सेस एंड फेलियर में कभी भी इस पे जाना नहीं चाहता। मैं हमेशा यही कहना चाहता हूं कि यू प्लीज ट्राई टू डू योर 100%। आप दीजिए, ईमानदारी से दीजिए। सक्सेस फेलियर ऊपर वाले पे छोड़। इंटेंट अच्छा है, देर हो सकती है, लेकिन सक्सेस मिलेगी। और समस्याएं भी अच्छे लोगों को ही आई, आते रहने दीजिए। और एक समस्या आएगी, उसके 100 समाधान है। पॉजिटिव वे में काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस फेलियर स्टोरी में बहुत ज्यादा मैं जाना नहीं चाहता। मैं एक और बात भी कहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि बहुत सारे अवार्ड्स ये वो, मैं सब बोलता हूँ दीज आर ऑल बाय प्रोडक्ट्स। मैंने स्नेह शुरू किया तो कभी ये सोच के थोड़ी किया था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा, ये अवार्ड मिलेगा, ये अवार्ड मिलेगा। मैंने अपनी बेटी की परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया कि मुझे ये काम करना चाहिए। और उस काम को करते हुए हम आगे बढ़े। कई सारी चीजें आई, उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि जब वो मिलते हैं तो एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है, साथ में एक जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है। और जब ठप्पा लग जाता है तो उसको आपको मेंटेन करना होता है, उससे आगे बढ़ना होता है। उसको उसी तरह से लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आई थिंक दैट इज द key of the success. Right. So last one, any advice or suggestion or message to our audience? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं अभी चूंकि नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ परिवार, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इन इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों की, एंड दैट इज माय फोकस एरिया, मैं आप सबसे ये कहूंगा कि अगर कोई भी इस तरह का इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चा आपको दिखता है या दूसरा चैलेंज व्यक्ति दिखता है, उसको प्लीज डोंट अवॉइड देम, try to give them the consideration,
इंक्लूड देम विथ यू, इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर्म करने में उसका एक हिस्सा बनिए। कुछ आप अगर क्वालिफाइड लोग हैं तो आप उसको क्या गवर्नमेंट की चीजों तक ले जाने में उसकी मदद कीजिए, उसको आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने में मदद कीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम निश्चित रूप से न केवल एक स्पिरिचुअल लेवल पे आपको सेटिस्फेक्शन देगा, बल्कि इस कंट्री के लिए भी वो एक बड़ा काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कंट्री की जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। और लास्ट में मैं स्वामी विवेकानंद जी की इस लाइन को कोट करना चाहूंगा कि उनसे जब पूछा गया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, तो उन्होंने कहा था कि कर्तव्य निष्ठा से बढ़कर कोई देशभक्ति नहीं हो सकती। तो हमारी कर्तव्य निष्ठा यही कहती है कि हम अपने इस कर्तव्य का पालन करें, ऐसे लोगों को सही राह दिखाएं, उनके फ्रस्ट्रेशन को दूर करें, उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करें और इस सोसाइटी को एक इंक्लूसिव सोसाइटी का रूप दें। करेक्ट। This is wonderful thing we can do. Everyone can do at least on their own space. और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, being a like educated people, we can understand them. तो जहाँ पे भी ऐसे गरीब लोग हैं जिनके बच्चों को प्रॉब्लम है, we can help them कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस है, ये करवा लो, इस स्कीम का आपको ये बेनिफिट मिलेगा, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, उसके बारे में उनको बताओ। तो एटलीस्ट वो बच्चे स्कूल जा पाएंगे जो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और अगर जा भी रहे हैं तो वो सस्ते स्कूलों में जा रहे हैं, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा अच्छे स्कूल में। और फिर गवर्नमेंट की स्कीम ये भी है कि बाहर पढ़ने के लिए भी वो जा सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं, वहां स्टडीज के लिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है, तो वो सब बेनिफिट मिल सकते हैं। तो रियली वंडरफुल सेशन विद यू सर, एंड इट वाज अमेजिंग इनसाइट्स यू हैव शेयर्ड अबाउट ऑल दीज स्कीम्स गवर्नमेंट की जो हैं, उसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, तो वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो वेरी मच पंकज सर फॉर योर टाइम, इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग यू हियर, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आगे भी इस तरह के चीजों के बारे में बात करें ताकि और अवेयरनेस फैले। तो आई वुड डेफिनेटली लव टू इनवाइट यू अगेन एंड अगेन। I think we can have a one session on the government scheme programs and policy itself, so that more people can aware about that. And I'm very much thankful to you for inviting me and giving me this opportunity to tell about all these things. And I hope the purpose आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, I wish you all the best. आपको ईश्वर खूब एनर्जी दे, खूब ताकत दे, और आप इस तरह के पॉजिटिव चीजों को खूब स्प्रेड अप करें। My all the best wishes are with you. Thank you so much. Thank you so much. And also I will share your social media links so that people can be in touch with you, take your health guidance. Sure. Guys, don't forget to check that out too. Thank you so very much everyone for watching and listening. I hope you all must have gathered a lot of information and enjoyed watching it. Don't forget to like, share and subscribe. Have a good day.